Hello everyone. Today we are going to discuss chapter 12, theme 4 of history of your textbook, that is thinkers, beliefs and buildings. In our previous session, we discussed about a glimpse of Sachi, the background, sacrifices and debates, the sacrificial tradition and new questions. Today we will discuss about debates and discussions beyond worldly pleasures, spread of Jainism and the Buddha and the quest for enlightenment. So here we start with the chapter now. Debates and discussions. We get a glimpse of lively discussions and debates from Buddhist texts which mention as many as 64 sect or school of thoughts. Teachers travelled from place to place trying to convince one another as well as lay persons about the validity of their philosophy or the way they understood the world. Debates took place in Kutagrahshala, literally a hut with a pointed roof, or in grove where travelling mendicants halted. If a philosopher succeeded in convincing one of his rivals, the followers of the latter also became his disciples. So support for any particular sect could grow and shrink over time. Many of these teachers, including Mahavir and the Buddha, questioned the authority of the Vedas. They also emphasized individual agency, suggesting the men and women could strive to attain liberation from the trials and tribulations of worldly existence. अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो 64 स्कूल्स ऑफ थॉट्स को मेंशन करते हैं. उनके अकॉर्डिंग 64 अलग अलग फ़िलॉसफी को प्रैक्टिस करने वाले लोग थे. जो उनके टीचर्स होते थे वो एक से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे जगह जगह ताकि वो अपनी थ्योरी को बता सके और लोगों को कन्विंस कर सके कि हमारी थ्योरी की वैलिडिटी है, हम ही सही कर रहे हैं या कह रहे हैं. कई सारी डिबेट्स होती थी इन सेक्ट्स में, जैसे कि कुताग्रहशाला में एक हट जिसमें पॉइंटेड रूफ होती थी वहाँ पर होती थी, या फिर किसी ग्रूव में हो जाती थी जहाँ पर भिक्षु वगैरह रहते थे. तो अगर कोई दो सेक्ट में डिबेट हो रही है और एक सेक्ट जीत जाता है तो दूसरे सेक्ट के जीतने जितने भी फॉलोवर्स होते थे वो पहले सेक्ट के गुरु के फॉलोवर्स बन जाते थे और अपने प्रीवियस वाला जो उनका सेक्ट होता था उसको छोड़ देते थे. तो इस वजह से जो किसी का भी पर्टिकुलर सेक्ट है वो कम होता और बढ़ता रहता था. महावीर और बुद्धा भी इन्हीं सेक्ट में से थे और उन्होंने वेदास की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया. उनके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल एजेंसी ज़रूरी है, आपके कर्म ज़रूरी है लिबरेशन अटेन करने के लिए. बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स, द मैसेज ऑफ महावीरा. द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द जैनास was already in existence in North India before the birth of the Vardhaman, who came to be known as Mahavir in the 6th century BCE. According to Jaina tradition, Mahavir was preceded by 23 other teachers. The most important idea in Jainism is that the entire world is animated, even stones, rocks, and waters have life. Non injury to living beings, especially to humans, animals, plants, and insects, is central to Jaina philosophy. In fact, the principle of ahimsa emphasized within Jainism has left its mark on Indian thinking as a whole. According to Jaina teachings, the cycle of birth and rebirth is shaped through karma. Asceticism and penance are required to free oneself from the cycle of karma. This can be achieved only by renouncing the world. Jaina monks and nuns took 5 vows to abstain from killing, stealing, and lying, to observe celibacy, and to abstain from possessing property. अब यहाँ पर बात होगी जैना फ़िलॉसफ़ी की कि जैना फ़िलॉसफ़ी में क्या लिखा हुआ था. जो जैनाथन था उसकी जो बेसिक फ़िलॉसफ़ी है वो वर्धमान, जो कि बाद में महावीर के नाम से जाने गए, उनके आने से पहले ही एग्जिस्ट करती थी. महावीर जो थे वो 23 टीचर्स के बाद आए थे. अब इम्पॉर्टेंट आइडिया जो था जैनिज़्म का वो यही था कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो एनिमेटेड है. जिन चीज़ों को हम ये समझते हैं कि उसमें लाइफ नहीं है, इवन उसमें भी लाइफ है, जैसे कि स्टोन्स, रॉक्स, वाटर, इन सब में लाइफ है. हमें किसी के साथ भी हिंसा नहीं करनी चाहिए और अहिंसा वाला जो इफ़ेक्ट है ये सारी इंडियन थिंकिंग में है, एक डीप इम्पैक्ट छोड़ गया. इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ है ये कर्म के थ्रू आती है. अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका जो रीबर्थ होगा वो अच्छा होगा, और अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपका रीबर्थ गंदा होगा. अगर आपको इस बर्थ के और रीबर्थ की साइकिल से छुटकारा पाना है तो एस्केटिज़म और पेनेंस ज़रूरी है, यानी कि त्याग और तपस्या बहुत ज़रूरी है. ये तभी अचीव हो सकता है
जब आप सांसारिक मोह माया को छोड़ देंगे, यानी कि ये रिनाउंस कर दें वर्ल्ड को। अब इसके लिए जैन धर्म में 5 वोज हैं, 5 संकल्प लेने पड़ते हैं किसी भी मॉन्क या नन को। वो ये है कि किसी को मारना नहीं है, कोई चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, ना कभी मैरिज करेंगे, सेलिबेसी प्रैक्टिस करेंगे और कभी भी प्रॉपर्टी को पोसेस नहीं करेंगे। The spread of Jainism. Gradually, Jainism spread to many parts of India. Like the Buddhist, Jaina scholars produced a wealth of literature in a variety of languages, Prakrit, Sanskrit, and Tamil. For centuries, manuscripts of these texts were carefully preserved in libraries attached to temples. अगर हम जैनिज़्म के स्प्रेड की बात करें तो जैनिज़्म में बहुत अच्छी लिटरेचर है, बड़ी ही वाइब्रेंट लैंग्वेजेस में है, प्राकृत, संस्कृत और तमिल में। मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है टेक्स्ट की वो बड़ी केयरफुली प्रिजर्व्ड की जाती थी सेंचुरीज़ तक लाइब्रेरीज़ में, जो कि टेंपल के साथ अटैच होती थी। तो जैनिज़्म एक वाइब्रेंट कल्चर रहा। द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट. वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर्स ऑफ द टाइम वॉज द बुद्धा. Over the centuries, his message spread across the subcontinent and beyond, through Central Asia to China, Korea, and Japan, and through Sri Lanka across the seas to Myanmar, Thailand, and Indonesia. How do we know about the Buddha's teaching? These have been reconstructed by carefully editing, translating, and analyzing the Buddhist text mentioned earlier. Historians have also tried to reconstruct details of his life from hagiographies. Many of these were written down at least a century after the time of the Buddha in an attempt to preserve memories of the great teacher. According to these traditions, Siddhartha, as the Buddha was named at birth, was the son of a chief of the Sakya clan. जो बुद्धिज़्म है वो सेंट्रल एशिया से चाइना, कोरिया, जापान तक स्प्रेड है और श्रीलंका से भी अक्रॉस दी सी टू म्यांमार, यानी कि बुद्धिज़्म बहुत ही रैपिडली स्प्रेड हुआ, बुद्धा के टाइम पर भी और बुद्धा के बाद के टाइम पर भी। अब हमें बुद्धिस्ट टीचिंग के बारे में पता कैसे चलता है? बुद्धिस्ट टीचिंग के बारे में 2 जो सोर्सेज हैं हमारी, वो ये हैं कि एक तो हो गया बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बुद्धा की जो टीचिंग्स है, उनकी सारी प्रैक्टिसेस बुद्धिज़्म की और कई सारी बातें लिखी हुई है, तो हिस्टोरियंस को वो स्टडी करते हैं। इसके साथ ही हेजियोग्राफीज़ जो बुद्धा पे लिखी गई है, हेजियोग्राफी होती है बायोग्राफी ऑफ अ सेंट, किसी भी सेंट की बायोग्राफी जो उनके डिवोटीज़ ने लिखी है, जो बुद्धा के डिवोटीज़ ने लिखी है एक सेंचुरी के बाद, उनको भी स्टडी किया जाता है। अब बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग जो सिद्धार्थ थे वो एक चीफ थे साक्या क्लैन के, उनके बेटे थे। He had a sheltered upbringing within the palace, insulated from the harsh realities of life. One day he persuaded his chartier to take him into the city. His first journey into the world outside was traumatic. He was deeply anguished when he saw an old man, a sick man, and a corpse. He realized in that moment that the decay and the destruction of the human body was inevitable. He also saw a homeless mendicant who, it seemed to him, had come to terms with old age, disease, and death, and found peace. Siddhartha decided that he too could adopt the same path. Soon after, he left the palace and set out in search of his own truth. Siddhartha explored several paths, including bodily mortification, which led him to a situation of near death. Abandoning these extreme methods, he meditated for several days and finally attained enlightenment. After this, he came to be known as the Buddha or the Enlightened One for the rest of his life. He taught Dhamma or the path of righteous living. वो एक राजा के बेटे थे, तो उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई थी वो पैलेस में हुई थी, पूरी राजसी ठाट बाट के साथ हुई थी, किसी चीज़ की उनको कमी नहीं थी और कोई हार्श रियलिटीज़ उन्होंने देखी नहीं थी। एक दिन उन्होंने अपने चार्टियर को कहा कि मुझे सिटी में लेके चलो, और जब उन्होंने सिटी में जाके देखा तो ये पाया कि पूरी तरह से जो उनका नज़रिया था वो चेंज हो गया था। वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूट गए थे, मतलब बाहर की जर्नी उनके लिए बहुत ही बुरी और ट्रॉमेटिक थी। उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, एक सिक मैन को देखा, डेड बॉडी को देखा। उन्होंने समझा कि डेथ और डिस्ट्रक्शन तो ह्यूमन बॉडी के लिए इनएविटेबल है ही, मतलब ये तो होनी ही होनी है। इसको देखकर वो परेशान हो गए। फिर उन्होंने एक होमलेस मेंडिकेंट को देखा, भिक्षु देखा जो कि खुश था, सुखी था। सिद्धार्थ ने सोचा कि मैं भी यही पाथ अडॉप्ट करूँगा, इसलिए उन्होंने पैलेस छोड़ दिया और ट्रूथ की सर्च के लिए चल पड़े।
कई सारे पाथ उन्होंने अपनाए, जैसे कि बॉडीली मॉडिफिकेशन, अपने शरीर को दुख देकर सोचा, लेकिन उससे जो उनकी सिचुएशन थी वो नियर डेथ जैसी हो गई। तो उन्होंने सारे एक्सट्रीम मेथड छोड़कर मेडिटेशन किया, जिससे उनको एनलाइटमेंट मिल गई। उसके बाद से उन्हें गौतम बुद्धा कहा जाने लगा, और अपनी अगली लाइफ के लिए उन्होंने धम्मा को टीच किया कि किस तरह से एक ह्यूमन बीइंग को रहना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स।